Namaskar to all the viewers and welcome to all the panelists. दोस्तों आज हम पोल्ट्री इंडस्ट्री पे चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत तरह की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कहीं पे फीड का क्राइसिस रहा, कहीं पे डिजीज का क्राइसिस रहा, कभी कोविड का क्राइसिस रहा, कभी मक्के का क्राइसिस रहा। हम पिछले 1-1.5 साल से किसी ना किसी मुसीबत से जूझ रहे हैं। In last couple of months, we all had a very bad time, and we had lot of crises, whether it is related to feed prices, whether it's a disease outbreak, markets were shut down because of lockdown in COVID, and many challenges were there. Now, today what we are discussing is that even under all this crisis, and we have seen that conventional business models are not delivering profit to our small and medium farmers. Then what we should do? End of the day, what is important is that all the hard work of our farmers, small and medium farmers, should result in something meaningful so that they become prosperous, they can ensure the welfare of their families, and they can grow their businesses. In order to discuss that, today we have invited some of the unique role models, let me put that way. You may be knowing many of them. If you don't know, let me introduce one by one to all of you. First of all, let me introduce, we have heard about a company, Godrej Tyson. Two giants, one from India, one from US, have come together to do something different in Indian poultry industry than other companies. And to represent and to discuss the learning of Godrej Tyson about Indian market and what we should do, we have invited a very respected person, Mr. Prashant. Mr. Prashant Watkar is CEO of Godrej Tyson, and we will see insights about how and what Godrej is thinking about Indian poultry industry and consumers in India. Followed by that, we have another very important person with us. Godrej, we all know, big brand. There's another very popular and very fast emerging brand is Baramati Agro. It is again in Western Maharashtra, started as a other poultry farmer businesses doing poultry rearing, selling in the wet market, but now they have moved into value-added category, doing very well. Let us learn from them why they moved from simply production to the value-added category. What was the driver? Why they have moved from simple production into value-added markets, talking about consumers all the time. What is the learning for us from Baramati Agro's experience? Another person we have, which is another very unique, I will say that maybe you can say turnover or scale-wise is smaller, but a brand-wise very fast emerging brand, and that is Nandu's Chicken. Now, Nandu's Chicken, the person who is brain behind it, why they did it, why they moved from simply production into value-added category, and that too from a small town. I'm not saying they are sitting in metros, but they are in a small, comparatively smaller town and doing very well and growing very fast. And most important, the trade secret is, I think they have one of the best profit margins in the game. I will not go into numbers, but definitely that is quite tempting. If you listen and invite Mr. Narendra Pashupati on a cup of coffee, then he will tell you the secret behind the success. But we will try to extract some of them today from Narendra, and Narendra has joined us to share his experience and his approach towards business. And another person who is silently making a lot of effort to integrate small farmers from all over the country, especially broiler farmers. Small farmers, when people say that small has no voice unless you become big. So Sheikh has created a small farmers association based in a town called Kanpur. You must be aware of that. And they're sitting there, he is making his contribution, making noise about the problems of farmers, but at the same time also finding solutions. And that is why I invited Sheikh, that how you are looking at markets which are conservative markets like UP, where people talk about vegetarianism, and how the poultry is performing and what is the way forward. So friends, once again, I welcome all the viewers, those who are watching this program.
let me assure you, our attempt is to create this as a learning session. We all have to learn a lot from these honorable guests, and I would like to invite them one by one to share their thoughts. And if there are any questions among the viewers, please do send to us. Maybe based on the questions, we may create another set of episode to answer your queries, or you can deal with them directly if you know their contact details. But let me assure you that for next 1 hour or so, it should be an interesting learning exposure. Why we have done it? Once again, I'm saying, it is not that poultry has no future or poultry is always a loss making. All these people, those who are here in the business, they all have created a niche. They have created a different business model, which is delivering profitable results. So here we are here to learn how to make profit in poultry business. That is the theme of the today's session. So let me start first by inviting Prashant ji. Prashant ji, and the same question will to all the panelists after Prashant ji. What you feel about poultry sector in India, considering the ground reality of India, that existing business model which my farmers are following, will it continue, or we have to look slightly differently so that my poultry sector becomes profitable even under all these crises, because profit is vital for survival. So keeping this factor in mind, Prashant ji, to start with you, what do you think about today's poultry scenario in India? So thank you, Vijay ji, for inviting me on this discussion, and namaskar sare viewers ko. You have asked a simple question which probably can have asked together discussion. I will try to be as tight and concise as possible. Whatever I have understood, poultry has grown very rapidly over years, over the past couple of decades. Few simple statistics अगर मैं देखूं तो आज से 25 साल पहले सिर्फ 8% लोग पोल्ट्री खाते थे इंडिया में. आज के तारीख में that is more than 40%. So poultry consumption has gone up. Most of it is through wet market पिछले सालों में. एंड ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है क्योंकि पूरे इंडस्ट्री ने बेइंतहा मेहनत करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को काफी अच्छा कंट्रोल किया है. अगर इन्फ्लेशन देखें तो उससे कई गुना कम कॉस्ट इन्फ्लेट हुई है पोल्ट्री की. हमारे एफसीआर बढ़े हैं, जेनेटिक्स में हमारी ब्रीड इंप्रूव हुई है, टेक्नोलॉजी आई है, फीड में काम हुआ है. अब कोई भी एस्पेक्ट ले लीजिए पोल्ट्री का, उसमें बहुत बहुत बेहतरीन काम हुआ है. नाउ ऑल दिस हैज हेल्प्ड पेनिट्रेशन. ज्यादा लोगों ने खाना शुरू किया है, ज्यादा अफोर्डेबल रहा है. रिलेटिवली बैरियर्स जो वेजिटेरियनिज्म के हुआ करते थे शायद वो अभी थोड़े कम हो गए हैं. पीपल आर मोर ओपन एंड दैट्स हाउ टिपिकली यू सी कि बहुत घर ऐसे हैं घर पे नहीं पकाएंगे जी बट बाहर आई डोंट माइंड हैविंग, यू नो, लेट्स फेस द फैक्ट. सो दिस हैज हेल्प्ड द business, the entire sector so far. The question you are asking, Vijay ji, is this going to continue for future? मेरा उसमें टेक ये है कि for some time in future, short while, this should continue. This will not go away. But the real big disruption जो जिसको कहते हैं, that will come with something which is non-linear, which is not doing the same thing that we have been doing so far. But this will be required. We can't give up this. This is a necessity. But this may not be a sufficient condition anymore. काफी लोगों ने ये दिखा दिया है. Pandemic has definitely helped. But जैसे players हैं Licious, Fresh to Home, ये जो direct to home है नंदूज, इन लोगों ने दिखा दिया कि एक महंगे कीमत पे भी कंज्यूमर को अगर कन्वीनियंस दिया जाए, अच्छा क्वालिटी दिया जाए, तो पीपल वो प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हैं आज के तारीख में. चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे वो हायर एंड हो, बट ये शुरुआत हो गई है जो पहले शायद हम लोग सोच नहीं पाते थे. सेकेंड थिंग दैट हैज कम अप इज वैल्यू एडेड, विच इज फ्रोजन स्नैक कहिए, टिक्कास कहिए, कबाब्स कहिए, आपके नगेट्स कहिए. तो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड ग्रोइंग मच फास्टर.
एक चीज देखनी जरूरी है कि ये सब में एक कंज्यूमर एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि कंज्यूमर का अभी भी ओपननेस, क्योंकि फ्रोजन या चिल्ड थोड़ा प्रॉब्लम आता है। वेट मार्केट में कंज्यूमर विल गो एंड चूज द बर्ड, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज ऑफ अ हायर ऑर्डर। इंडस्ट्री ने अभी तक बैकएंड पे काम किया है, आई मस्ट कन्फेस, बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। हमने अभी तक फ्रंट एंड में कंज्यूमर के साथ में जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया है, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक द इंडस्ट्री शुड डू। विद दैट एवरीबडी इन द इंडस्ट्री इज देयर टू गेन। I think I think Prashant ji, you have raised a very very important issue कि हमने बहुत अच्छा काम किया. Today Indian poultry industry is one of the best and one of the largest in the world. No doubt, all credit goes to all the farmers, all the nutritionists, all the scientists, all the people, those who have invested in this industry. Definitely a great work, and I always say that in fact poultry industry is one of the most scientific industry today in agriculture space in India. So that, no doubt on that. I will bring now Dr. Pal into it. Dr. Pal, what Prashant ji has said, you have heard about his views. Now, you are also one of the very pioneering industry in Western Maharashtra and done a lot of things. And you are also with a technical hand, with commercial, dealing with farmers, policymakers, and all that. What do you think? What is happening today in the poultry industry, and what is the areas where we have to focus on? And from a Baramati Industries point of view, that how you have looked into, and what is the changes you are visualizing in coming? Thank you, Vijayji, and very good evening to all the panelists. I'm Dr. Paul, representing Baramati Agro. Actually, what the Prashant ji has just mentioned, he was talking about the we have done very good things in our FCR and our productivity, everything is fine, and we have all accept it in the poultry market, right? But one thing, after post-COVID, what I find is a change in the customer behavior. At present, our customers are more cautious, more hygienic. They want more hygienic foods. They want more easily accessible foods, or chicken, as we are in a chicken business. So accessibility of the chicken, hygienic chicken, are the need of the society. And one more thing, these changes are majorly observed in our urban areas. So as Prashant ji was mentioning, we have not done enough to educate our consumers. I also do agree to that. We have in our Baramati also, we have done a lot of things in the in the cities, metros, and everywhere. But what I feel really from my heart is that we need to educate our consumers even in our village market, because India गांव में बसता है, और अगर हम लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी या बॉटम लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग वो बिजनेस को थोड़ा गांव में भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपका फार्मर्स बोलिए, आपका जो भी बोलिए, हम लोग का मैक्सिमम जो स्क्वायर फीट्स है वो आपका गांव में ही रहता है। ये एक पॉइंट हम बोलना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि हम लोग जो कर भी रहे हैं, जो हम लोग मान लीजिए हम लोग का रिटेल शॉप्स ओपन कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी टू द फार्मर्स को, माने कंज्यूमर्स को भी जो भी दे रहे हैं, उसका ऊपर भी हम लोग का थोड़ा और काम करने का चाहिए। उन लोग को ये समझने का लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव नेवर सीन ए फोरम वेयर वी आर डिस्कसिंग व्हाट टाइप ऑफ चिकन वी शुड ईट, व्हाट नॉट टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ टू कुक। ये जो एक डिस्कशन होता है, ये एक फोरम में लाना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत हम एक छोटा स्टेप ही बोलेंगे। विजय जी को हम इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कम से कम बातें तो सामने आ रही हैं, कम से कम एटलीस्ट इट इज कम टू द टेबल। अभी हम अगर एक्सेसिबिलिटी का बात करें, तो एक चीज, एक आदमी का बिहेवियर को अगर चेंज करना चाहते हैं या आप कम्युनिटी का बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, तो पहला बात वो आता है एक्सेसिबिलिटी। अगर हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ तक जा रहा है, वो कहाँ तक हम पहुंचा पा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, द प्राइस, हम लोग क्या प्राइस में पहुंचा रहे हैं। नंबर थ्री,
आपका क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हमको लगता है इसको हम लोग बहुत बड़ा फोरम में डिस्कस करना चाहिए, फार्मर का साथ बातें करना चाहिए, कंज्यूमर का साथ बात करना चाहिए। व्हाट आई फील nowadays we should not go in the number game, because पैसा आपका किलो में आता है, मिनट से आता है. So how much I am placing, like we especially I am least bothered about it, but how much meat I am getting out of it, the placement of my chicken, that is most important. हम 1.3 स्क्वायर फीट में हम जो बॉडी वेट ला सकते हैं, वो हो सकता है कि 1.5 में इससे ज्यादा बॉडी वेट ला सकते हैं. बात दोनों का सेम ही है, बॉडी वेट मेरा सब सेम है, लेकिन क्या कि हम नंबर गेम में अगर जाते हैं तो फिर हमारा प्रोडक्टिविटी खराब होते हैं. तो क्वालिटी, जूसीनेस, सब कुछ उसका साथ रिलेटेड होता है. सो वी शुड नॉट गो फॉर अ नंबर गेम, यू नो. व्हाट आई रियली फील इज वी शुड गो फॉर द bottom line. Top line is an investment basically. Bottom line, how you deal with, how your strategies are working, how you are planning, what is your forecasting, how accurate is your forecasting. All these things are very important. So this is what my take about the subject. I think you have raised some of the most important issues that जो हमारे बहुत सारे किसान का जो बिजनेस मॉडल है वो है कि हाउ मेनी चिक्स यू हैव डन द प्लेसमेंट, हमने कितना प्लेसमेंट किया है. हमारा सारा फोकस वहां रहता है. हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमने जो प्लेसमेंट किया उसमें से प्रॉफिट कितना मिला. और कभी कभी ऐसा होता है कि मोर वी डू प्लेसमेंट मोर लॉसेस वी सफर. तो ये बड़ा डाइसी गेम है. और जो मेरे ख्याल से डॉक्टर पॉल ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वक्त आ गया है कि जब हर आदमी प्रोडक्शन कर रहा है तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि मार्केट डिमांड किस सीजन में कितना है, कौन से सीजन में प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है. हम ब्लाइंडली प्लेसमेंट ना करते जाएं, क्योंकि अगर जो हमने पहले कमाया है पिछले फ्लॉक्स में, हो सकता है अगले फ्लॉक्स में वो लॉसेज हो और सारा बराबर हो जाए मेहनत को. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी वाइटल इशू. Narendra, I want to now bring you into the discussion. You see, you are also not, I will say that, a conventional farmer who is only interested in doing placements and selling in the wet market. You created your own brand. You looked into something differently which others were not able to look at it. Let me put that you are one of the pioneers of consumer behavior in chicken. Let me put that way. And you are not a multinational or a big organization which is flooded with funds and everything. So you are like private equity player or like Licious and other, those who are getting money and you are burning cash and surviving. You have done in a very calibrated manner. अपने पैसे से सोच समझ के you have done this business. And today you are one of the success stories. My request is that please share your experience. You were also in the same like our other friends, those who are in wet business, but suddenly you realize that I think I have to branch out and do something different to ensure profitability. What was that journey? What triggered you when you got this eureka moment? Okay, now I think I have to move away from simply placement and go into value-added product. And what mistakes or what errors or what accidents happened on the way? And how you recovered, and today you are still growing at a very respectable, both in terms of margins as well as in offtake of the products. So we are also interested in knowing your journey, how all started, and what is your message to our farmers. Over to you, sir. Thank you, Vijayji. Thank you for having me on the forum. My fellow panelists have shared some fantastic points, and I will just supplement some of those thoughts and ideas. I am actually a software engineer, and I was living in America for a long time. And I came back to India in 2005 to join my family's poultry business. My father started the poultry business in the early 60s. And like every other poultry breeding company today, we are in feed manufacturing, parent breeding, chick sales and hatcheries, broiler farming. So until 2016, all we did was produce hatching eggs, chicks, broilers, and then hand it over to the traders.
and we hoped and prayed that we got a good realization. Now, this was something that that was not acceptable to me. Always I was thinking, it is my product. Why can't I get my price? मेरा वस्तु है और मुझे प्राइस फिक्स करने में हक नहीं है. I mean, what is this? What kind of business is that, right? So for a very long time, I did not understand how this business operated. So then again, what happens is, like every poultry person today, like every breeding company today, we are all very happy doing what we know best. What do I know? I know how to create a broiler farm. I know how to create a parent farm. I know how to put a hatchery and hatching equipment. And I know how to get those hatching eggs and convert them into chicks and sell it to the farmer. Everybody I spoke to in the industry, they're all very comfortable just doing what they know and losing the money. And everybody you talk, they'll say, oh, एक year का average ले लो, कुछ पैसा बन जाएगा. अरे कुछ पैसा बनाने का नहीं है मुझे, right? Consistently I want to put money. Consistently I want to make money, because time is money and your life is money, right? Now, that is where I said, look, we own the entire supply chain. Why are we giving these fantastic products that we are producing? Why are we giving it to the traders and then waiting for 15 days, 1 month for payments to come? Sometimes payments won't come at all. Sometimes bird is gone. I have not fixed the prices. It's just like a total loss of control. I'm sure my poultry brethren are able to relate to what I'm saying, right? सबका हाल यही है ना इंडस्ट्री में. So हम लोग इतना मेहनत करके प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट के लिए और उसका दाम फिक्स नहीं कर पाते हम लोग. So 2016 I said नहीं चलेगा यार, कुछ और करने का है. And that is when I convinced my father and my brother that we should get into the consumer business. अपना वस्तु डायरेक्ट कंज्यूमर लेके जाने का है. कैसा लेके जाने का पता चल जाएगा. पहले तो जर्नी शुरू करो ना. So like when you are actually climbing the Mount Everest, if you look at it from the base camp, it will look unachievable. डर लगता है ना? But my father always said, the 1,000-mile journey starts with the first step. So I just took a rash decision. I said, चलो अभी एक छोटा सा स्लॉटर प्लांट लगाता है, अपना मुर्गी लेके क्लीन करके रिटेल करेंगे हम लोग, बस वही करने का है मुझे. So that's how the journey of Nandu started. My brother Naveen Pasuparthi was a great support. In fact, he ideated a lot with me, and we came up with this idea that our produce we are going to take directly to the consumer. We have to have a unique selling proposition, USP lagana ka hai. So we don't use any antibiotic growth promoters in the production of our broilers. We grow the chicken, we slaughter them in a very hygienic slaughterhouse, state-of-the-art hygienic slaughterhouse. Then we bring it to market in a chilled format. So live chicken outlet, Nandu's is not a live chicken outlet. We operate in Bangalore, 55 outlets, and there is absolutely no resistance. In fact, I wish to say that consumer is going to the vet shop. Live chicken shop consumer जा रहा है क्योंकि उनके लिए option नहीं है. Nobody today wants to see a bird being slaughtered in front of them. It is not a good experience. See, look at every other retail experience in India. Even buying glasses has become a very fashionable experience. Lenskart बहुत अच्छा काम कर रहा है. Modern trade कितना बढ़िया retail experience दे रही है. And us as poultry industry have failed at it. Why? Because the entire industry believes that everything is in wet market. नहीं है boss. You don't need wet market. Give the consumer a fantastic environment. Give him chilled chicken. Talk to him. Let him experience your product once, and the consumer will come back. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए.
45 days ago, we opened one outlet. Not even 45 days, just about 40 days now. This outlet, fantastic location, 1,000 square feet, clean, saaf suthra outlet, very good layout, color scheme अच्छा है, it's very inviting for the consumer to come in, both clean है. First month of operation, we have broken even. Okay, when I say broken even, कॉस्ट मेरा मुर्गी का दाम निकलता है, उधर काम करने वाले 4 लोग हैं, उनका पगार निकलता है, and I'm breaking even at the outlet. पैसा, I'm not losing money. Now last 4 years we have put some money into branding, but वो करने का है, brand create करने का है. हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत करके we are creating this bird with fantastic FCR. And we are giving it to the trader. Oh, nobody recognizes our poultry industry as working hard towards bringing great quality product. Oh, live chicken outlet में कोई पूछता है क्या, सुगुणा है या वेंकाब है या गोदरेज है, कोई पूछ नहीं रहा है. Therefore, it is very important for us to create that brand. Look at what Sneha is doing, right? In Hyderabad, they have created Sneha chicken. Then there is, Lifeline in Karnataka has created Lifeline tender chicken, and Nandu's, we have created Nandu's chicken. So everybody in your village level, if you have a broiler farm, please do not create another broiler farm. Broiler poultry breeding or poultry farming में जो भी पैसा हम लोग लगा रहे ना, उसमें से छोटा सा बाग लेके छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ आप लोग. उसमें से जो भी क्लीन साफ सुथरा चिकन निकलता है ना, रिटेल इट टू द एंड कंज्यूमर इन अ वेरी क्लीन फॉर्मेट. 4 दुकान 5 दुकान चलाओ आप, थ्रू आउट द ईयर स्टेबल प्राइस मिलेगा आपको. कंज्यूमर मार्केट में चिकन का दाम 220 के नीचे कभी नहीं गया हुआ है. मैक्सिमम इफ इट गोज 200 जाता है, बस उतना ही. नाउ हमारा लाइबर्ड में देखो आप, 50 rupees भी चलता है, 120 rupees भी चलता है. How can somebody live in this volatility? So therefore, that is, I mean, I started Nandu's only because I was unhappy with the rewards for the efforts that we were putting. Brand भी नहीं निकल रहा था, no control on the market, none of that stuff. So that was the trigger point for me, sir. That was the trigger point. Fantastic. So I think Narendra ji, you have very, very inspiring and very, I think the young generation of poultry businesses must listen to you, and you should act as a mentor to many, many of them. For that, I will bring now Mr. Sheikh into picture. Now you have heard about what Narendra ji has said. You have heard about what others have said. और आप बहुत सारे, आप खुद भी पोल्ट्री फार्मर हैं, बहुत सारे आपके मेंबर्स भी पोल्ट्री फार्मर हैं. नंदू जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत पुराना माइंडसेट से हटना पड़ेगा. वाटकर साहब ने भी यही बोला, प्रशांत ने भी, कि यार हम सिर्फ FCR और फीड कॉस्ट के ऊपर पूरी जिंदगी निकाल देते, हमने कस्टमर पे काम नहीं किया. डॉक्टर पॉल का भी यही कहना था कि यार हमने पूरी जिंदगी प्रोडक्शन पे निकाल दिया, अब वक्त आ गया है कि हमें कंज्यूमर के बारे में सोचना होगा. आप किसानों के साथ रहते हैं, आप किसान एसोसिएशन भी चला रहे हैं, आप खुद भी एक काफी बड़े फार्मर हैं, आपने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं. आपका क्या कहना है इस पूरी चर्चा को लेकर कि आने वाले समय में आपकी अपने पोल्ट्री फार्मर्स को क्या एडवाइस होनी चाहिए, या आपने जो अभी सुना 3 हमारे वक्ताओं के साथ, आपका अब क्या कहना है इस पूरी चर्चा को लेके कि क्या हमारे किसानों को जो कर रहे हैं वो ठीक है या उनको बदलने की जरूरत है, और बदलना है तो किस डायरेक्शन में बदलना है? ओवर टू यू शेख साहब. नमस्कार एक बार सभी लोगों को. मैं कानपुर में बेस्ड हूँ, और हमने जो हमारा कोर बिजनेस है, वो कोर बिजनेस हमारा ब्रॉयलर फार्मिंग है. अभी हम लोग फीड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं. हम लोग अभी पिछले 1 साल से ब्रीडिंग फार्म भी है, और अपना करीब पिछले 5 साल से हमने कानपुर शहर के अंदर हाइजेनिक रिटेल आउटलेट्स इजी चिकन के नाम से वो भी बनाया है 5 साल पहले. तो 5 साल पहले एक शुरू किया था, अभी हमारे पास में 7 आउटलेट जो है वो चल रहे हैं. ये भी हमने अपने साथ में ही अपने वैल्यू एडिशन के लिए इसको किया.
तो जो अभी हमारा पहले थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जैसे हमने नंदूस जी का सुना हमें, तो हमने इनिशियल फेज में उसको एक अलग मॉडल से किया। भी हमने क्या कि भी जैसे अपना मीट शॉप है, तो मीट शॉप को हमने बिल्कुल हाइजेनिक बनाया। तो वहां पर हमने प्रोसेसिंग पार्ट को अलग किया और कंज्यूमर पार्ट को हमने अलग किया, और दोनों के बीच में हमने ट्रांसपेरेंट जो है वो शीशा लगाया, ताकि कंज्यूमर को उसके सामने उसको फ्रेश चिकन जो है वो दिख रहा है कि लाइव बर्ड कैसे हलाल हो रहा है, कैसे पैक हो रहा है, और बिल्कुल हाइजेनिक कंडीशन में। अब इसके साथ साथ में हमने 7 आउटलेट और बनाए। ये हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि लोग हाइजेनिक शॉप पे लेना चाहते हैं, हाइजेनिक चिकन चाहते हैं, बट कंज्यूमर क्या है कि वो उसका प्रीमियम जो है वो कंज्यूमर पे नहीं करना चाहता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण जो हमने आइडेंटिफाई किया कि कंज्यूमर हाइजीन के बारे में जानता है, बट उसको हाइजीन के बारे में पूरा अपडेट नहीं है कि भाई हाइजीन जो है वो किस तरह का चापड़ होना चाहिए, किस तरह का कटर होना चाहिए, वो दुकानदार जो है वो लोहे से काट रहा है या स्टील एसएस के उससे काट रहा है, किस उस पे का लकड़ी पे है। अभी कंज्यूमर उसके बारे में अवेयर नहीं है। पर जैसे ही अगर मान लो हम लोग अगर मान लो 200 रुपए दे रहे हैं और रास्ते में अगर तखत पे बैठा हुआ आदमी अगर मान लो वो 180 है, तो वो 180 वाले को प्रीफर करता है। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि जो फार्मर अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 40 वर्ष में प्रोडक्शन के ऊपर काफी काम हुआ है। आज के समय में जो फीड की प्राइसेस हैं और जो रेडी बर्ड के जो प्राइसेस हैं और जिस तरह से अप डाउन्स हैं, उस अप डाउन के हिसाब से आज के टाइम में वैल्यू एडिशन बहुत ही जरूरी है। ये फार्मर का जो सर्वाइवल है वो बिगर वैल्यू एडिशन के अब आज के वक्त में सर्वाइवल है नहीं। मैं आपको सरदारा साहब आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने जो टॉपिक के ऊपर आज एक डिस्कशन रखा है, ये वास्तव में एक बर्निंग इशू है आज के टाइम में, कि लोगों मतलब जो फार्मर है जो पोल्ट्री कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 एपिसोड साल 1.5 साल के अंदर जो आदमी 40 साल से काम कर रहा है, वो भी है जो कोरोना के अंदर और जो अफवाह फैली फिर बर्ड फ्लू हुआ उसके अंदर वो धराशायी हो गया। आज बड़े बड़े पीरियड जो है वो धराशायी मतलब उस पोजीशन में है। तो हालात ये है कि उसके पीछे कारण यही है कि भी हमारे पास में जो मार्जिन है, जैसे पीछे आपने कहा कि पहले जो फार्मर जो है वो प्लेसमेंट करता है, उसने देखा है कि होली पे कंजप्शन है, ईद पे कंजप्शन है, दीपावली पे कंजप्शन है, न्यू ईयर पे कंजप्शन है, क्रिसमस पे कंजप्शन है, तो वो कंजप्शन तो वो देख के तो वो प्लानिंग करता था। बट आज के टाइम में क्या है कि कोई ऐसा फिक्स नहीं कि आपको मार्केट का रेट कब मिलेगा। तो ओवरऑल पहले था कि फार्मिंग में 6 फ्लॉक ब्रॉयलर में निकालता है तो 4 फ्लॉक में उसको प्रॉफिट हो जाता था। बट आज के हालात ये है कि भी उसको 4 फ्लॉक में उसको नुकसान होता है, 1 फ्लॉक 2 फ्लॉक उसके उसमें प्रॉफिट में कहीं आ जाती है। तो इस तरह से धंधा करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो वैल्यू एडिशन इसके लिए बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन से ही हमारे पास में जो प्रॉफिट मार्जिन का जो गैप है, कॉस्ट का और प्रॉफिट का जो गैप है, वो वैल्यू एडिशन से ही बढ़ सकता है। कि अभी हम लोग क्या है कि जो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि भी हम भी यहाँ कानपुर में 10 लाख के आसपास की हमारी अपनी फार्मिंग है, तो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हम अपने आउटलेट से हम अपने आउटलेट की जो हमारी सेल है वो 0.01% है। तो हमें अपने आउटलेट की जो सेल है, कंज्यूमर एंड की जो सेल है, उस सेल को हमें उस जो 0.01% है, उस सेल को जब हम अपने आप बढ़ाएंगे, तो अभी ये भी हम पिछले साल का अगर ऑल ओवर इंडिया का अगर हम रियलाइजेशन देखें या यूपी का रियलाइजेशन देखें, तो हमारी जो कॉस्ट जो है और जो रियलाइजेशन है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो अब हमें क्या है कि जब हम कॉस्ट तो हम लोग अब कुछ कॉस्ट ये है कि भी हमारे पास में फीड कॉस्ट वो लगभग 70% है, 20% के आसपास चिक्स कॉस्ट है, और फार्मर के हाथ में मुश्किल से 5-7% है जिसको वो कंट्रोल कर सकता है कि 4 लेबर की बजाय वो 3 लेबर कर लेगा, ये कर लेगा। अब उसके पास में ऑप्शन नहीं कि वो अपनी कॉस्ट पर और काम कर पाए। इसके लिए उसके लिए जरूरी कि उसको कंज्यूमर एंड पर ही उसको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शेख साहब आपने। और मेरे ख्याल से यही आज एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है जो आपने अभी डिफाइन किया फ्रॉम ए फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि पहले तो फिर भी एक
6 में से 4 में अगर लॉस होता था तो 2 में प्रॉफिट होता था और गुजारा होता था। अब वो जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा है, जिस तरह से मार्केट बदली है, वो अपॉर्चुनिटीज भी कम होती जा रही हैं और बाकी चैलेंजेस भी आ रहे हैं। फीड प्राइस भी बढ़ गया, लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। मैं वापस प्रशांत जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। प्रशांत जी, you have heard about the ground reality and you are aware of the ground reality much better than me कि किस तरह से small farmers are struggling to keep heads above the water even in the fluctuating market. On the one side we are saying population of birds is going up, on the other side margins are shrinking, other costs are going up. Now issue comes up is there is no way out without value addition in the whole business. Now you are one of the best managed company in the country when it comes to value addition. You have global inputs, you have domestic inputs, you have your own experience of as a business leader, as a manager. I'm asking you, if you have to advise our farmers, especially small and medium farmers, what will be your advice to them, how they can survive and ensure profitability in business? Prashant ji, I need your guidance. Please guide our farmers. So, Vijay ji, to be very frank, इसमें अगर अभी हमने शेख साहब को भी सुना तो कह रहे हैं कि उनका very small proportion is getting sold from their retail shop. So, एक बात मैं upfront कहना चाहता हूँ with due respect to this topic and everyone who has spoken, value addition is required, which I also mentioned. But we should not see value addition as a fashion statement, and I'm a bit critical in this approach. And मैं भी आपको explain करता हूँ क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर हम ये कहते हैं कि cost addition कर दिया, मैंने live bird को उठा के slaughter कर दिया, अच्छे से पैक कर दिया तो value addition हो गया। ये थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। That is definitely cost addition. बिकॉज एक बुचर की कॉस्ट और एक प्रोसेसिंग हाउस की कॉस्ट में कम से कम 70% to 80% का कॉस्ट बढ़ जाता है अगर आप पूरे रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं। तो आपका बाय प्रोडक्ट्स को करना है, आपको सारे रूल्स, लेबर लॉ मेंटेन करने, सब अगर मैं एकदम कायदे से बिजनेस करूं तो सो कॉस्ट तो मेरी बढ़ गई 70% से। अब वो 70% की कॉस्ट बढ़ी हुई, जब तक कंज्यूमर उसको वैल्यू ना दे उस लेवल का, तब तक उसको हम वैल्यू एडिशन अगर कहें तो वो थोड़ा सा हमारी चूक होगी। अब वैल्यू एडिशन कब कहेगा? वैल्यू एडिशन कंज्यूमर तब कहेगा जब उसको उसमें कुछ बेनिफिट दिख रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आज के इंडियन कुकिंग की जो तरीका है, दैट इज सच कि वो चिकन गेट्स कुक्ड एट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसको अगर जैसे आई थिंक शेख साहब ने कहा था कि वो बुचर किस तरीके से काट रहा है, लकड़ी पे काट रहा है, लोहे से काट रहा है, जो भी कर रहा है वर्सेस स्टेनलेस स्टील, डिफरेंस तो है, बट वो डिफरेंस कंज्यूमर को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो जब तक एज अ इंडस्ट्री, सिर्फ छोटे नहीं बड़े नहीं, चाहे वो हम हो या छोटे फार्मर्स हो, एवरीबडी, हमको उसका मतलब कंज्यूमर को समझाना पड़ेगा, उसका मायने क्या है, व्हाई शुड दे पे। मार्केटिंग में एक क्लासिकल लाइन होती है विच इज द निचोड़ या एसेंस ऑफ मार्केटिंग। इफ यू कैन आंसर व्हाट इज इन इट फॉर मी, देन यू हैव सक्सीडेड एज अ मार्केटर। तो कंज्यूमर को पोल्ट्री इंडस्ट्री ने यह समझाना जरूरी है कि व्हाट इज इन इट फॉर द कंज्यूमर टू बाय this more expensive chicken, and that is where I think मेरे हिसाब से इंडस्ट्री थोड़ी अभी भी चूक रही है। कंज्यूमर की साइकी समझनी जरूरी है, वो क्या चाहता है, हम क्या दे रहे हैं, वो समझना जरूरी है। दैट्स वाई हमने देखा है कि जैसे आपने कहा विजय जी कि कैश बर्न करके ग्रो करना इज वन थिंग, सम ऑफ द प्लेयर्स आर डूइंग दैट, बट हमने देखा कि जैसे हमारा फ्रोजन चिकन था यमीज का ब्रांड, दैट हैज ग्रोन वेरी रैपिडली, प्राइमरली बिकॉज वहां पे डिस्टिंक्ट वैल्यू एडिशन कंज्यूमर देखता है। वो घर पे एक नगेट कंसिस्टेंट तरीके से नहीं बना सकता है, वो शीख कबाब उस तरीके से नहीं बना सकता है। सो देयर इज अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्ट, मतलब वो कहते हैं ना अंधे को भी दिख जाए, उस तरीके का है। चिकन जब होता है रॉ चिकन, उसमें हमको ये देखना जरूरी है, उसमें हमको ये, एंड इट विल बी अ स्लो प्रोसेस,
इट विल बी अ प्रोसेस जहां पे हमको समझाना पड़ेगा, थोड़ी हमको कॉस्ट की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, बट कितनी भी अगर आप कॉस्ट कैलिब्रेशन कर लेंगे तो कॉस्ट तो आपकी बढ़ने वाली है। तो हमको ये कंज्यूमर को जब तक हम नहीं समझा पाएंगे तब तक रॉ चिकन पे हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, एंड ये एक आदमी से होने वाला काम नहीं। I think it's you have added a very very vital issue कि जितने हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं एंड ऑल द पोल्ट्री फ्रेंड्स एंड फार्मर्स इन दिस सेक्टर, आई थिंक आप कर क्या रहे हैं, जब तक कंज्यूमर आपके एफर्ट को एप्रिशिएट नहीं करेगा वो आपको प्रीमियम नहीं देगा। सो इट मीन्स कि हम प्रोडक्ट के साथ साथ जानकारी भी कंज्यूमर को पहुंचाएं कि व्हाई माय चिकन इज बेटर। नहीं तो उसके लिए एवरी बर्ड इज विद 2 legs, wings and neck and it can be slaughtered and consumed। जैसा नरेंद्र ने कहा कि हमने एक यूएसपी क्रिएट किया था कि हमारे बर्ड में एंटीबायोटिक नहीं होगा, दैट इज ए पॉलिसी डिसीजन, ताकि कंज्यूमर को यह तो पता रहे कि अगर मैं नंदू का चिकन ले रहा हूं तो एक बात तो कंफर्म है कि उसमें एंटीबायोटिक नहीं है, बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर यह भरोसा भी कंज्यूमर को हो जाता है कि ये 100% एंटीबायोटिक फ्री है and customer is willing to pay premium, as Narendra has said कि भाई 220 में हम बेचते हैं, कभी बहुत खराब हालात हो गए तो 200 रुपए किलो, हम उससे नीचे नहीं बेचते हैं क्योंकि कंज्यूमर वैल्यूज एंड ही इज विलिंग टू पे। Paul sir, now I'm bringing you here. Now you are also operating in a very typical market. I will say that mainly rural dominated chicken rich market, you know, that Western Maharashtra, all lot of big players are there. You were like a capital of poultry in this, you know, that zone was virtually the first initiator of the poultry domain, and still you are able to create a niche. What was happening in the concept of value addition? Why you started when everybody is having a wet market around, market is well known, consumer knows the product कि यार wet market में सब ठीक है, हमारे घर में तो आसपास बहुत मुर्गी फार्म है, हम कहीं से भी ले लेंगे। Still you entered into a value added category. What was that message, and whether you feel as a manager, as a decision maker, was that a right decision? And if that was a right decision, are you encouraged, and what is the overall learning from that experience? Over to you, Paul sir, and you are on mute. थैंक यू विजय जी। आपका जैसे प्रशांत जी ने भी बताया कि हम लोग का जो बेसिक मकसद होता है एक एज ए कंज्यूमर, तो उसका है वैल्यू फॉर मनी। हम जो पे कर रहे हैं उसका एगेंस्ट में हमको क्या मिल रहा है। अगर अपना बारामती का अगर आप लोग हिस्ट्री में जाते हैं या अगर हमारा लोगो देखते हैं, वहां पे बोला जाता है कि लिंकिंग द बेसिक्स। हम लोग का जो पहले हम लोग का एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज था, हम लोग का अपना फार्मर्स को पहले ग्रेप्स उगाना सिखाया, वी हैव डायरेक्टली कनेक्टेड देम टू द इंडस्ट्रीज। तो हम लोग उन लोग को डायरेक्टली एक ग्लोबल फोरम देने का कोशिश किया, इंडियन नेशनल फोरम देने का कोशिश किया। उसके बाद हम लोग अपना जब पोल्ट्री सेक्टर चालू किए तो उसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आए, एंड एज मिस्टर नंदू वाज टेलिंग कि हम अपना माल किसी दूसरे का भरोसे हम रेट पे क्यों बेचें। तो वही सोच से, सिमिलर सोच से अपना बारामती का भी रिटेल चेन चालू हुआ। टुडे वी आर फॉर्चुनेट एनफ टू हैव अराउंड 200+ रिटेल चेन इन द नेम ऑफ चिकन वीकेंड। और वो जगह में हम लोग सक्सेसफुली हम लोग अपना प्रोसेस चिकन को कर रहे हैं, अपना का फ्रोजन फूड्स को भी हम लोग बेच रहे हैं। बट ऐसा मेरा पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारा जो बेसिक नीड्स है वो है कंज्यूमर का एजुकेशन, व्हाई ही शुड पे मी। हमारा 200-220 का वो एक प्रोसेस चिकन क्यों वो लेगा, वो बहुत जरूरी है इंडियन मार्केट में। बिकॉज चेंजिंग ए हैबिट ऑफ ए कस्टमर, it takes time. It really takes time. And we all in this business for a pretty long time. We have seen like slowly from a few shops then to reach such a around 200+ number. It really takes time and it's a lot of hard work. But even अगर हम उसका profitability और उसका balance sheet देखें तो क्या होता है कि उसका effort जो होता है हमको लगता है कि और बहुत डबल या ट्रिपल करना जरूरी है। हर एक फोरम में ये बात बोलना जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, कैसे हम लोग उसको और आगे बढ़ा सकते।
अगर आपका इंडियन सिनेमा थोड़ा बहुत अगर फिगर देते हैं, हम लोग का इंडिया में जितने भी ब्रॉयलर चिकन प्रोड्यूस होता है उसका प्रोबेबली मेरा नॉलेज से 15 to 20% ही प्रोसेस होता है। उसमें से हो सकता है कि मेरा जितना जानकारी है 70% से फ्रोजन में जाता है, और रियल जो हम लोग का 30% जो होता है, अराउंड 30% के आसपास आपका इसमें नागेट्स या जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाता है। तो ये जो सेक्टर है इसको कैसा पुश करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट मेक द कंज्यूमर अवेयर, जो प्रशांत जी ने बोला कि आप वो सीख कबाब या वो नगेट्स वो क्वालिटी आप तो खुद बना नहीं सकते। सो बेटर यू सेव योर टाइम एंड हैव फेथ ऑन अस एंड जस्ट परचेज इट। ठीक है, ये चीज हम जब तक कंज्यूमर के पास उठा के नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को ही बोलेंगे, हम लोग को ही बोलना पड़ेगा, और तो कंज्यूमर तो बोलेगा नहीं। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शेख साहब का एक इनपुट बड़ा अच्छा लगा हमको, जो वो एक ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखा रहे हैं जहां से वो एक कस्टमर दिख रहा है कि प्रोसेस चिकन का क्या बेनिफिट्स है। वो जो है ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड आई एम श्योर लाइक वी विल कम अप विद मच मोर दिस टाइप ऑफ इनोवेटिव थॉट्स। तो हमारा ये जो प्रोसेस चिकन है, ये इसको अगर हम लोग ऊपर लेवल में पुश करना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि ओवर एंड ओवर अगेन इन एवरी फोरम्स वी शुड talk with the consumer. We should have a more interaction with the consumer. जैसे हम थोड़ा दिन पहले का अगर हम बात करें, जस्ट लास्ट वीक हम लोग का यहाँ पे कुछ हम लोग अपना जो रिटेल शॉप में कुछ हम लोग सर्वे किए थे। तो हम लोग खुद अपना सीनियर लोग हम लोग खुद गए थे अपने रिटेल कस्टमर मैंने रिटेल स्टोर्स में, और कंज्यूमर का साथ बात कर रहे थे। तो बहुत सारा कंज्यूमर का बहुत सारा फीडबैक आया, लेकिन निचोड़ ये है कि बहुत सारा क्लियरिटी नहीं दिख रहा। व्हाई शुड आई बाय? कुछ हम लोग बात करें तो कुछ प्लीज करने के लिए बोलते हैं, कुछ खराब भी बोलते हैं, कुछ पूरा रियल फैक्ट भी बोलते हैं, लेकिन निचोड़ अगर हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारा क्लियरिटी नहीं देखा। वो हम लोग करके हम लोग मैनेजमेंट लेवल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसा वो क्लियरिटी को और बढ़ाया जाए। ठीक है, और please. Great. I think this is what Prashant ji has also mentioned, जो पॉल साहब ने कहा कि what is there in it for me, मैं क्यों खरीदूं आपका माल। इस सवाल का तो जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे को अगर चिकन खाना है तो वही चिकन मंडी में या बाजार में 120-140 रुपए किलो मिल रहा है। आप मेरे को बोल रहे हैं कि इसका 200 रुपए लगेगा, किस लिए? जब तक वो किस लिए का जवाब नहीं है हमारे पास, मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा दूं, तब तक कंज्यूमर का रेजिस्टेंस बना रहेगा। Here I would like to bring back here Nandu's experience, because what is more fascinating is that an outlet of 1,000 square feet has become break even in 40 days, whereas everyone feels upset or uncomfortable कि यार खर्चा हो जाएगा, पैसे वापस नहीं आएंगे, ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, बेकार है वगैरह वगैरह। Now here Naren's experience, Naresh, I want to know that what is that which is driving the consumer from wet market into your storeroom? What you are offering to them? What is that message? What is that trigger which is giving comfort to people कि नहीं, हमको बाहर नहीं खरीदना है, हमको सस्ता चिकन नहीं लेना है, हमको नंदू चिकन लेना है। वो जो कंफर्ट फैक्टर है, जो जिसके लिए वो पैसा देने को तैयार है, what is that? Can you share those secrets with us? Sure, sir. So, first off, that's the clean, crisp layout of a Nandu store. The branding is very clean and crisp. Are you able to see, sir? Yes, please carry on. बहुत अच्छा है. So, the interiors are clean, fresh, nice. Everybody's uniform. Quality of service अच्छा है. We not only do chicken, fish भी करते हैं हम लोग. Because when the customer walks into the store, along with the chicken, we also have to offer them other meats. So we offer them other meats. It's a very clean and crisp environment. The staff is extremely well trained. सब में पैसा लगता है, sir. Okay. Now I'm just going to stop the screen share. Yeah, सब में पैसा लगता है. But you know what? ब्रीडर फार्म लगाने में भी पैसा लगता है,
ब्रॉयलर फार्म लगाने में भी पैसा लगता है, हैचरी लगाने में भी पैसा लगता है, बट द इंडस्ट्री नेवर थिंक ट्वाइस टू पुट मनी इनटू एनी ऑफ दीज थिंग्स. क्यों? उसको हम छू सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, बट brand is something that you cannot feel, sir. It is there. It is there in the consumer's mind. But that brand is what is going to help you sell chicken at $270. Aaj, I am selling chicken in Bangalore at 260 rupees a kg. And there's no resistance, sir. There's no resistance at all. I don't know how to explain this, but that's the reality of the show. Is it going to take time? Naren, my supplement point is that what is that thinking of consumer, why they left low cost chicken and came to you? Just focus on that dimension. That will be of insight. Correct. So first of all, we all have to recognize what is called as a target market. Usko identify karne ka hai. Correct? Because India mein लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सब वैरायटी का लोग है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर टारगेट मार्केट. उस टारगेट मार्केट को सोल्यूशन देने का है. दैट टारगेट मार्केट विल रेस्पॉन्ड एंड पे यू. बस उतना ही है. यू कांट lump the entire population that is eating chicken as wet market consumer. वो नहीं चलेगा सर. Look, I'll give you, I have couple of other competitors. 6,000 करोड़ का वैल्यूएशन बिल्ड किया है वो लोग. 6,000 करोड़ इन 5 years. वो पोल्ट्री फार्मर ही नहीं है. वो लोग क्या कर रहा है, पोल्ट्री कंपनी से मुर्गे क्लीन चिकन खरीद के दे आर गिविंग अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. पैसा खर्च किए हैं वो लोग, बट उनका वैल्यू क्या है आज? 7,000 crores, $1 billion वैल्यूएशन. न्यूज निकलेगा सर, एक 15 दिन दो, एक कंपनी इज यूनिकॉर्न बन गया. एक कंपनी है वो यूनिकॉर्न बन गया. हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई और वैल्यू निकाल रहा है उसका. वी इंस्टेड ऑफ दैट, you please identify your target market. You understand what is their pain proposition. Don't assume that the entire market is a wet market. नहीं sir, वो गलत है. There is, middle class people don't want to look at wet chicken. See, क्या हो रहा है? Generational change आ रहा है. Okay, I have never gone to a chicken shop and bought a live chicken in my life. Your children will never go to a live chicken shop and buy chicken anymore, sir. They are going to go into a store which is selling chilled chicken. वो रेवोल्यूशन होने वाला है, अभी नहीं तो 5 साल में होने वाला है. I will ask you a fundamental question. As a poultry company, as a poultry producer, as a broiler farmer, as a poultry farmer, if you don't take action, अगले 10 साल में आपका दुकान बंद. I'm telling you, because you are going to come into so much price pressure and volatility. Price का इतना ऊपर नीचे जा रहा है, तो somehow we will survive, but we will have peace of mind चले जाएगा sir. I think you have raised a very, very vital issue. I think this is a changing society. I think this is a very important and very powerful message that are we living in history or we are planning for future? Now, this is where the important issue is, and let me tell you my personal experience. My wife asked me to go and buy the live chicken. I went to the shop. I asked even the bargain, but then after 2 seconds or so, I said, no, leave it. I don't want to buy. I could not stand. I could not see the live slaughtering there the way he was doing it. So even person like me who is working with the poultry sector, by looking at the environment in the live market, means in my colony, how they are handling live birds, it was a little distressing. So I came back and then I told my wife, please send the driver, he will bring it. I could not buy it. So the situation is that and my daughter was very fond of chicken. Let me be very open here. Today, she said, nahi, mere ko chicken nahi khane ka. The reason again comes back here is that very, very simple thing is that we have to appreciate this, that
today consumer psychology is changing. He is looking at many more things, not just the chicken. So chicken is the component of buying experience. It is not that he is going only to buy chicken. He is looking for hygiene. He is looking for value. He is looking for convenience. He is looking for, the environment. He also doesn't want to experience or witness the cruelty. So there are many factors which is changing the consumer psychology. Here I will bring Sheikh Saab. One point I want to add. Please carry on. Yeah. Sir, my appeal to my poultry brothers and sisters is, when you can invest money into a farm and wait for 7 years, 5 years for you to get your return on investment, why don't you have patience for retail operations? It is very simple, sir. It's very simple. Just the way you invest money into a hatchery or a breeding farm or to a broiler farm, put your money into the future. It's like putting into savings. निकलेगा पैसा. 4 या 5 outlet open करो आप, dedicatedly the quality दियो, customer will come. If he sees your signboard every single day for the next 6 months, 7th month वो आके 1 kg खरीदेगा. उसके बाद महीने में, हफ्ते में 4 बार तो आ ही जाएगा. बिजनेस हो जाएगा सर. I think Naren, you have given a very, very clear and powerful message, and that is, I think, where the Sheikh Saab I want to bring in. Sheikh Saab, you have seen the experience of Tyson Godrej team. You have seen the experience of Paul Saab. You have seen Naren's experience in the form of Nandu's. You yourself as an outlet, you understand psychology of farmers. Now, I understand that change, you will always face resistance in change. That's a human factor here. अब मुझे आप ये बताइए कि as a farmer leader, as a representative of a small medium farming operations, हमको ऐसा क्या करना चाहिए as a industry, as collectively? Today is the first initiative just to bring thoughts together, and we know we have fantastic experience in the country. हमको इसके लिए विदेश नहीं जाना है, हमको इसके लिए कोई मैनेजमेंट कॉलेज नहीं जाना है. हमारे अपने लोगों का फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है, सिर्फ हमने उसको स्प्रेड नहीं किया, हमने उसको यूज नहीं किया. अब मुझे ये बताइए कि एज ए स्मॉल एंड मीडियम फार्मर इंडस्ट्री, ये जो एक्सपीरियंस आपने सुना, इसको ग्राउंड पे लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, हमारे किसान साथियों को मोटिवेट करने के लिए कि अब आप फ्रंट एंड में जाइए, कस्टमर को समझिए, अकेले जाइए, टीम बना के जाइए, जैसे मर्जी जाइए, करना क्या चाहिए हमें ऑन ग्राउंड, सो दैट आवर स्मॉल मीडियम फार्मर्स बिकम प्रॉफिटेबल? दैट इज द बेस लाइन हियर. अभी हम अपने एक्सपीरियंस से और जो हालात हैं, कि एक नरेंद्र जी का जो पॉइंट है, जो लास्ट में उन्होंने ऐड किया है कि भी लोग एटलीस्ट जो है, जो फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट करें, 4-5 आउटलेट शुरू करें. तो मेन इसके अंदर जो हडल है कि जो कंज्यूमर है वो प्रीमियम क्यों पे करे, भी कंज्यूमर प्रीमियम क्यों पे करे और हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर एंड पर सेल करें. तो उसके लिए ये है कि भाई हमें इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट जो है वो करना पड़ेगा. अभी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, जो भी इस वीडियो को देखे सभी फार्मर से, सभी से ये कहूंगा कि एटलीस्ट हम लोग अभी अपने इस फ्यूचर के ऊपर, कि हम लोग मान लो हम पर केजी, मतलब महीने के अंदर मान लो हमने इतना किलो माल बेचा, तो हम इसमें से कुछ हिस्सा निकालें और अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हम लोगों को, देखिए लोगों को हमें अवेयर भी करना पड़ेगा. जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे तब तक वो प्रीमियम पे नहीं करेंगे. इस तरह की एक्टिविटी हमने भी कानपुर शहर के अंदर शुरू की है कि भी लोगों को अवेयर किया जाए. जब लोग अवेयर करेंगे तभी मेरे से 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो महंगा प्रोडक्ट लेंगे. इसीलिए बोले कि हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और अवेयरनेस लाने के लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा. कि भाई कोई भी आदमी मान लो वो फीड बना रहा है, कोई भी आदमी चिक्स प्लेस कर रहा है, कोई भी आदमी ब्रॉयलर फार्म चला रहा है, कोई आदमी रिटेल शॉप चला रहा है, कोई आदमी अपना सप्लाई चेन लाइव चिकन की सप्लाई कर रहा है, वो एटलीस्ट अपने
मान लो फीड में 5 पैसे 10 पैसे या ब्रॉयलर में 5 पैसे 10 पैसे वो अपने मासिक जो उसका वॉल्यूम है कि भाई उसने जो है वो मैंने मान लीजिए कि 300 टन माल इस महीने में बेचा तो 10 पैसे पर किलो अगर मान लो मैंने निकाला और उस 10 पैसे को अगर मैं कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए खर्च करता हूं मेरे आसपास के इलाके में, मेरे को उस अवेयरनेस को खर्च करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली जाऊंगा लखनऊ जाऊंगा इसका बेनिफिट मेरे को नहीं मिलेगा। पर मेरा जो सेंट्रल प्लेस है अगर मैं उसमें अवेयरनेस लाता हूँ कि भाई अवेयरनेस में ठीक है, भाई चिकन के आइटम क्या बन सकते हैं, हाइजीन क्या हो सकता है, पोल्ट्री क्या है, किस तरह से इसके फायदे क्या है, इस तरह की अगर एक्टिविटी हम कंट्रीब्यूशन अपने वॉल्यूम में से निकाल के अगर हम खर्च करना शुरू करेंगे तो मेरे को लगता है कि इस आने वाले इस सेक्टर के अंदर जो बिल्कुल सही है कि 5 साल बाद में 10 साल बाद में जिस तरह से वेट मार्केट है ये दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और कोई भी इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है भाई आप जैसे हम यूपी का आपको बताएं कि यूपी में पूरे यूपी में कोई भी लाइसेंस नहीं है लोगों के पास में, हर आए दिन जो है वो परेशानी है कि भाई दुकान बंद करो ये है वो है और जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस करके भी हमें कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन निकाल के अपने इलाके के लोगों को हम जितना जल्दी हम लोगों को अवेयर करना शुरू करेंगे इसका बेनिफिट हमारे सभी फार्मर को, सभी रिटेलर को, पूरी इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलने लगेगा। बहुत बढ़िया। नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। मैं लास्ट राउंड क्विकली जैसे कहते हैं रैपिड फायर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सबसे आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा बिकॉज आई नो यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक रिच एक्सपीरियंस, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जितने मेरे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो एंड ऑफ द डे इस पूरे प्रोग्राम को सारे इश्यूज उन्हें समझे, बात की, अब वो लास्ट टाइम में सोचना चाहेंगे कि यार मैं अब करूं क्या, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, एंड ऑफ द डे व्हाट इज टेक होम मैसेज फॉर मी, मैं क्या करना चाहिए मुझे घर जाके, कल से मैं क्या डिफरेंटली करूं ताकि मेरा फ्यूचर बेहतर हो जाए, मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाए। तो प्रशांत जी, आई विल स्टार्ट विद यू अगेन कि अब मुझे 2-3 बुलेट पॉइंट्स, नॉट इन एक्सप्लेनेशन बट इन बुलेट पॉइंट्स की, देखिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आज तक आपने सर्वाइव किया जैसा भी किया, अब मुझे क्या करना है, वो जिसे गुरु मंत्र बोलते हैं ना, आपकी तरफ से वो 2-3 गुरु मंत्र, और यही मैं हर पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पूरे अनुभव से उसका अगर मैं एक्सट्रैक्ट निकालूं उसमें से जो गुरु मंत्र निकलेगा वो क्या है, 2-3 अगर आप क्विकली बता दें एज ए बुलेट पॉइंट, आई थिंक दैट विल बी फैंटास्टिक टेक होम मैसेज फॉर माय ऑल स्मॉल मीडियम फार्मर्स। टू स्टार्ट विद प्रशांत जी, आपके गुरु मंत्र क्या रहेंगे? तो मेरा तो गुरु मंत्र यही रहेगा सर कि वैल्यू एडिशन पे जाए। अब आपको हर फार्मर को ये देखना पड़ेगा वो जेन्युइन वैल्यू एडिशन शॉप के फॉर्म में आएगा, पैकेज चिकन के फॉर्म में आएगा, या इवन अ सप्लायर टू ब्रांडेड प्लेयर, चाहे जैसा भी हो, बट ज्यादा से ज्यादा वो जिसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है वहां पे जुड़े, वो हर एक को अपना अपना हिसाब से देखना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। पॉल साहब, आपका क्या कहना है? हम आपका 3 ही पॉइंट बोलना चाहेंगे कि रीच टू योर कस्टमर, एडुकेट योर कस्टमर एंड कीप योर प्रॉमिस इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन। आप जो उनको प्रॉमिस करते हैं वो चीज को आपको रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर का बिहेवियर को अगर आपको थोड़ा चेंज करना है तो उनका साथ बात करना बहुत जरूरी है। सो रीच टू योर कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर एंड कीप योर प्रॉमिसेस। दैट्स इट। फैंटास्टिक। नरेंद्र जी, आपके एक्सपीरियंस से आपके साथियों को अगर आपको गाइड करना है, आपके गुरु मंत्र क्या होंगे? व्हाट आर योर messages to the fellow poultry industry friends? Well, don't think too much. बहुत सोच, if you think too much, it's analysis और paralysis हो जाएगा। जो भी बजट है आपके पास उसमें से थोड़ा ले लो, 2 या 1 या 2 दुकान बनाओ आप लोग, उसमें बैठो, समझो, understand your customer, do some local level marketing, leaflet banao, talk to your consumer, radio pe chalo, do something that brings attention to your business and get started, sir. It is time we get started because poultry industry
doesn't think twice about putting a breeding farm or a broiler farm. But retail जब आता है ना, सब लोग भाग जाते हैं. Why? शुरू करते हैं, we lose hope. Don't. दो दुकान लगाओ, लॉस पे चलेगा, कुछ सीखेंगे हम लोग. We will fix it. We will move forward. That's what I'm saying. So inertia नहीं चाहिए. अभी take the first step in a 1,000-mile journey, sir. That's my advice. बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब. अब ये आपने गुरु मंत्र सुन लिए. अब आपके सारे किसान मेंबर आपके दोस्त हैं, आपकी एसोसिएशन के दोस्त हैं. अब आप उन सबके लीडर हैं, नेता हैं, कुछ भी बोल सकता हूं मैं आपको. लेकिन अब आप बताइए कि आपकी तरफ से इन सब जानकारी को हमारे जो छोटे और मीडियम फार्मर्स हैं, जो हमेशा कहते हैं कि लॉस हो रहा है, इस सब डिस्कशन के बाद आपकी तरफ से उनको क्या गुरु मंत्र जाएगा कि अब हमें करना क्या? देखिए, मेरे 2 पॉइंट हैं. इस सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा. दूसरा पॉइंट हमें यह है कि भी सिर्फ कंज्यूमर को अवेयर से ही काम नहीं चलेगा, हमें फार्मर को भी अवेयर होना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि ताकि हम फ्यूचर जिस तरह से डिमांड है उस तरह से हम प्रोडक्ट को भी तैयार कर पाए. कि अगर हम फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट ही अगर तैयार नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या है कि उससे भी बात नहीं बनेगी. तो अवेयरनेस दोनों एंड पर जरूरी, ताकि हमारा प्रोडक्शन भी ठीक हो और हमारी सेल भी जो है वो ठीक हो, ताकि हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के प्रति और उसको कंज्यूमर से हम जुड़ सकें. वो जिस तरह से मैं नरेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई दुकान खोलिए, बिल्कुल सही है. छोटे फार्मर का आज के टाइम में जो सर्वाइवल है वो किसी ट्रेडर को बेच के सर्वाइवल नहीं है, कंज्यूमर को बेच के ही सर्वाइवल. तो दोनों को अवेयर करना है. और हमें मैं जो नरेंद्र जी की जो बात है उसको आगे बढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छा उनका फ्यूचर के लिए विजन है फार्मर के लिए कि सर्वाइवल जो है वो इसी से है. और बड़ा अच्छा है कि भी आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं और नरेंद्र जी के विचारों से हम काफी सभी लोगों से प्रभावित हुए. पर नरेंद्र जी का जो है कि फार्मर के, छोटे फार्मर के लिए कोई दुकान खोलिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं और उसको रिपीट करता हूं. बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि देखिए, आप और हम भी कंज्यूमर हैं. जब हम बाजार जाते हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे हम सब्जी खरीदने जाएं, चाहे हम मिठाई खरीदने जाएं, हम कहाँ जाते हैं? जरा आप खुद सोचिए. आज आप पोल्ट्री फार्मर हैं, लेकिन जब आप बाजार में कंज्यूमर की तरह जाते हैं तो आप हर दुकान में मिठाई नहीं खरीदते, हर दुकान से कपड़ा नहीं खरीदते. आप वहां जाते हैं जहां आपको भरोसा होता है, जहां आप ट्रस्ट करते हैं कि यहां चीज अच्छी मिलेगी, और आप ये उम्मीद करते हैं कि जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं वो आपको ईमानदारी से अच्छा प्रोडक्ट दे, अफोर्डेबल प्राइस पे दे, आपके साथ चीटिंग ना करे. इसका मतलब यह है कि जो हम एज ए कंज्यूमर चाहते हैं वही एज ए पोल्ट्री सप्लायर हमको अपने कंज्यूमर्स को देना होगा. और यही बात चारों लोगों ने हमारे सामने जो रखी, चारों का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है. अगर मैं क्यूमुलेटिव करूं तो मेरे ख्याल से टोटल एक्सपीरियंस और कुछ नहीं तो कम से कम 60 से 70 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने था. अगर मैं पोल्ट्री के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 60-70 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने हमने निचोड़ के लाए आपके लिए 1 घंटे में. और मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि क्या मैं एज ए कंज्यूमर आप पे भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं आप जो कह रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट एंटीबायोटिक फ्री है, क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं? आप जो कह रहे हैं, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या मैं ईमानदारी से आप पे भरोसा कर सकता हूं? अगर मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं तो मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं. अगर मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा हूं तब मैं कहूंगा कि लेट मी ट्राई समवेयर एल्स. और वो एक एज ए बिजनेस मैनेजर, मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से ये कहता हूं कि हम कुछ भी मेहनत कर लें, एंड ऑफ द डे अगर कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट नहीं उठाया और मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट उठा लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मेरे पे भरोसा नहीं है. प्रोडक्ट मैं भी दे रहा हूं, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर भी दे रहा है, लेकिन वो उस पे ज्यादा भरोसा कर रहा है, मेरे पे कम भरोसा कर रहा है. अब ये मुझे सोचना है कि मैं अपना भरोसा अपने कंज्यूमर्स के दिमाग में मैं कैसे इंप्रूव करूं.
उसके लिए मुझे क्या कदम उठाने हैं। जैसा प्रशांत जी ने कहा कि आप वैल्यू एडिशन करिए, पैकेजिंग बदलिए, दुकान बदलिए, लेआउट बदलिए, कम्युनिकेशन बदलिए, प्रोडक्ट ऑफरिंग बदलिए। नरेंद्र जी ने कहा कि आप आउटलेट का एक्सपीरियंस दीजिए। पॉल साहब ने कहा कि और आप चाहो तो उसको अपने फार्म विजिट पे करा लो ना, क्या प्रॉब्लम है। उसको भरोसा होना चाहिए आप पे। जिस दिन वो आप पे भरोसा करने लग गया, उस दिन जो रेट आप मांगते हो कस्टमर उसको खुशी से देता है। और नरेंद्र का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि एक तरफ हमारी इंडस्ट्री कहती है इस समय 90 रुपए रेट चल रहा है, 85 रुपए रेट चल रहा है, 100 रुपए रेट चल रहा है, और नरेंद्र कहता है आज मैं 260 रुपए किलो चिकन बेच रहा हूं। ये वही देश है, ये मेरा ही देश है, ये वही सरकार है। संविधान भी सबका एक है। एक 100 रुपए में चिकन बेच रहा है, एक 260 में बेच रहा है, और शायद कोई 360 में भी बेच रहा हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये बाजार 140 करोड़ लोगों का है। दे आर नॉट 1% और इक्वल पीपल। अगर आपने 1% की भी बात करी तो 1.5 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। सो हर शहर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बाजार है। आप अगर कानपुर से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको लखनऊ भी जाने की जरूरत नहीं है, कानपुर बहुत बड़ा बाजार है। आप पानीपत में हैं तो पानीपत बाजार है। आप अगर नासिक में है तो नासिक बाजार है, आप सतारा में है तो आपका सतारा बाजार है, आप बारामती में है तो आपका बारामती बाजार है। कहने का मतलब क्या है कि इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, शायद कहीं ना कहीं हम उस अपॉर्चुनिटी को पढ़ने में चूकते रहे हैं। दिस कंट्री इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, 140 करोड़ पीपल, every city, every district offers opportunity. But are we listening to our consumers? Are we understanding their needs? Are we really interacting with them to understand what actually they need in chicken? If not, then it is not their fault, it is our fault. So if we want to make money, we have to move out and talk to our customers, understand their needs. Whatever they say, please follow that honestly so that they can trust you and offer you what you're asking in return for your chicken. So thank you very, very much to all my fellow panelists. It was a great learning experience. And I must say, this is one of the best poultry session when it comes to learning about consumer behavior and how to make poultry profitable. What are the success factors behind poultry in today's scenario when everything is looking like crisis? But you people have given us a ray of hope. No, it is not a crisis. It is an opportunity. We have to just change the way we are thinking and working. On behalf of my fellow panelists and all behalf of my poultry industry, this is the first time we have taken an initiative to understand consumer behavior, markets, and what is the future, what are the success factors. And I must compliment and thank US Soya Exporter Council. I also thank all the supporters, Poultry Federation of India. I thank our friends from Kanpur Association, which is Poultry Breeders Association, VIP Vet Welfare Association, which is veterinary and private, for supporting this initiative. I think everyone deserves credit, and most of them to our US friends, because they took lead, they provided all the infrastructure support and other support for making this event successful. And we are really thankful. And I hope this partnership continues, and this will be a journey where we all work together for making a better poultry market in India. Thank you so much for everyone. Thank you. Thank you. Okay. Thank you.